ਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਕ ਹਕ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਸ਼ ਬੁੱਝੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਏ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਤਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਮਰ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਪਰੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਮਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਮੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜੇਗੀ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲਾਟਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚੰਗਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਰ ਲਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਚਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਫੂਕਾਂ ਚਾਰ ਮਰਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਧੋਤਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਭਲਿਆ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਰਥਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਆ ਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਭਾਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣੀ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਾਰ ਬਿਨ ਜੀਓ ਜਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਪੂਛ ਦੇਖਿਆ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਸੜ ਸੁਆ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਕੇ ਸੁਆਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
दूसरी बेनती करा, फिर ये अमृत प्राप्त कित्थों हुंदा है? जे अमृत जिहड़ा है ये गुरु की बाणी है, अमृत नाम है। तो मेरे तो पहला मेरा छोटा वीर हुणे ये शब्द पढ़ के गया धन गुरु अमरदास महाराज जी का। थोड़ा जिहा इनू ध्यान दे नाल सुनियो, मैं ये अर्थ करना चाहुंदा। अमृत है कि साडे कोल दो शब्द ने जी, एक लिबासधारी है, एक अमृतधारी है। फिर सुनियो, लिबास मैं तन दे उत्ते पोशाक पाई है, लिबास पाया, पहरावा पाया है, ये धर्म का पहरावा है। मैं सिख हाँ, मैं कृपान पाई है, दस्तार सजाई है, दाड़ा प्रकाश है। हिंदू वीर आवेगा वो अपना जिहड़ा धोती पग बन्नेगा, वो तिलक लावेगा, वह अपना लिबास है धर्म का। मुसलमान वीर आएगा वो धर्म का अपना लिबास है। एक पादरी आएगा वो धर्म का अपना लिबास। ये एक लिबास नूं गुरु घर दे विच प्रवान नहीं किया गया। सतगुरु क्या लिबास के अर्थ तां सही ने जे ये मगर सिद्धांत काम करता है। तो जे मगरला सिद्धांत नहीं तो लिबास नूं बिल्कुल प्रवान नहीं किया। क्यों? इत्थे सतगुरां दी अमृत बाणी का बचन है कि गज साडे तै तै धोतियां तेरे पायण तग गली, जिन्ना जप मालियां लोटे हथ निबग, ओए हार के संत ना आखियां बनारस के ठग। जिहड़े लिबास कले पा के घूमणगे, अमृत बाणी आखेगी कि भलिया ये ठग तुरे फिरदे ने, इन्हां च धर्मी कोई नहीं है। फिर नाल सवाल दूसरा पैदा होंदा है कि ये लिबास नहीं पाउणा। मैं बेनती करा, लिबास पाउणा है पर लिबास के अंदर दे अर्थ होने चाहिए ने। वो अर्थ मैं सतगुरां दी बाणी चों सांझे करन तो पहलां एक बेनती कर देवां। एक मनुख मान लो पुलिस की नौकरी पिया करदा है, किसी वड्डे रैंक दे SP DSP के रैंक ते, वो अपने तन दे उत्ते पोशाक पाउंदा है, वर्दी पाउंदा है। जित्थों दी भी लंघदा है ना, जिहड़े चोर ने, जिहड़े डाकू ने, जां जिहड़े जानदे ने, वो कंबदे ने कि हाँ अफसर जा रहा, सानूं ध्यान नाल वेखना पवेगा। असीं ट्रैवल करते होइए, रस्ते च नाका लगा होवे, मनुख थिंबरदा है, थोड़ा जिहा नाका लगे, मैनूं ध्यान नाल लंघना पैना है। उसे वर्दी नूं बाजार दे विचों खरीद के बिना सिद्धांतों तो एक नाटक करने वाला स्टेज के उत्ते पाई फिर उहदे तो कोई नहीं डरेगा। पता है ये केवल तो केवल लिबास है, ये कोल पावर जिहड़ी SP वाली DSP वाली नहीं हैगी। मैं हुण अर्ज कर देना वो अमृत बचन, उहदे च वेख लियो कि तुहाडे कोल पावर DSP वाली SP वाली हैगी कि तुसीं भी खरीद के बाजारां तो विच पाए हुए ने। मैं ताइयों आरंभ च कहा सी दो शब्द ने, एक लिबास है, लिबासधारी वरत्या शब्द, एक अमृतधारी। अमृतधारी के अर्थ किने गुरु अमरदास महाराज जी समझाउंदे ने, कहन लगे सुर नर मुन जन अमृत खोजदे। सुर कहिंदे ने देवतियां नूं, नर कहिंदे ने मनुखां नूं, मुन मुनि लोक, जन कहिंदे ने सेवकां नूं। कहन लगे भलिया इस अमृत की भाल दे विच अज तो नहीं बड़ियां मुद्दतां तो फिरिया जा रहा है। सुर नर मुन जन अमृत खोजदे। फिर दाता जी अमृत मिलिया किसे नूं? लब्भा भी है जे असीं खोजन तुरे। सतगुरु कह लगे पुत्र किहड़ी चीज़ जिहड़ी खोजिया लभे ना, तू तौर ते सही लभण वास्ते। कह लगे सो अमृत गुर ते पाया। अमृत गुरु दे कोलों मिलदा है। भावें 5 प्यारे सहबान तैयार करदे ने, गुरु रूप होके जिहड़े पंजां दे विच गुरु वरतदा तां अमृत तैयार हुंदा। फूका मारिया अमृत नहीं तैयार हुंदा कदे भी। सुर नर मुंजन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा, गुरु ने कृपा करके अमृत दिता। माफ़ करना साडे वांगू लिस्टां नहीं भरियां होईयां। अज साडी ये पूरी वाह लगी हुई है। वड्डियां वड्डियां फर्मां जिहड़ियां, मैं फर्मी शब्द वरत लवां, साड़ियाँ लिस्टां ने, मैं इन्ने हज़ार पुरानी अमृतधारी बना दिते, इन्नियां नूं बना दिता। मैं कई बारी सोचदा इन्नी तो साडी कौम की गिनती नहीं जिन्नियां नूं लिस्टां 'च असीं अमृत छका दिता। वो गए कित्थे? तुसीं वेखो जिन्ने साडे वड्डे वड्डे संस्थावां ने ना, उन्हां दे रजिस्टर भरे पए ने, इन्ने इन्ने अमृतधारी पुराने हो गए, वो कित्थे गए ने? फिर कौम कित्थे रुल गई है साडी? असल दे विच अमृत वो है जो गुरु त्रुट के दिंदा, जिहड़ा लालच वस। चलो मैं हुणे बेनती कर देवां, ये जो अमृत संचार हुंदा है ना, तो दरवाजा बंद करन तो पहला एक जिहड़ी है बेनती, एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि जिहड़ा अमृत लालच वस, डरावे वस जां किसी होर रूप दे विच इहनूं धारण करन आया है, उहदे वास्ते दरवाजा खुला है, ये बाहर जा सकता है। जिन्हें अमृत शौक दे नाल, भावना दे नाल छकना, वो बैठ के ही अमृत छके। ये हर वारी जो अमृत संचार 5 प्यारे सहबान करनगे, जे एक दिन 'च 4 वारी कर देंगे, चारे वार ये अनाउंस हो जाएगा। क्योंकि इत्थे धक्के दे नाल नहीं, इत्थे किरपा दे नाल मिलदा। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा
मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय। सारे तू पैदा कीते हुए ने। एक वेख परसन आया, एक दा अर्थ करांगे कई। सारे पैदा तू कीते ने, इस च कोई शक नहीं। पर कुछ लोग इहो ਜਿਹੇ ने जिन्हां दे अंदर तैनूं दीदार करन दी चाह पैदा होई। सारियां दे अंदर चाहत पैदा नहीं हुंदी, सारियां दे अंदर प्रेम पैदा नहीं हुंदा। आ अंबां दी बहार है ना, बूटे नूं बड़ा फल पैना है। सारे फल नहीं कदी भी पकदे हुंदे। कुछ हनेरियां च चढ़ जांदे ने, कुछ तोते टुक जांदे ने, कुछ उदां काले पै जांदे ने, कुछ बचदे ने जिन्हां दे विच रस भरिया जांदा है। सतगुरु कह लगे ये वो है एक वेख परसन आया। कुछ गिनती दे चंद क जीवां दे अंदर चाह पैदा होया, वो वेखण वास्ते आ गए कि गुरु घर की खेड की है। जे उन्होंने अमृत मिलिया फिर अगे शर्त है, कह लगे लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। याद रखियो अमृतधारी के जीवन के ये चीज़ां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो खत्म हो जाता है वो उदों अमृत का हकदार बनता है। लब का अर्थ जुबान के चस्के, लोभ का अर्थ करांगे पदार्थां दे नाल खिच, अहंकार तो कोई नहीं बचता। मैं इत्थे लब ते लोभ दे परथाई एक बचन सतगुरां दा कह देना। मनुख का ये शुरू तो सवाल रहा है धर्म की दुनिया दे विच। मैनूं सवेरे भी संगतां दे विचों एक माता जी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं पुछना चाहुंदी हाँ ये फ्री टाइम कढ के तुहाडे कोल कि मास बारे की गुरमत कहिंदी है। ये अज दा नहीं, ये मुद्दतां दा सवाल चले आ रहा है। मैं सोचदा अजे तक असी इत्थों ही नहीं निकले। हुण अमृत बाणी की कहिंदी है? सब तो वड्डी गुरमुखों मुश्किल इस गल दी है, सानू बाणी दे नालों तोड़ दिता गया। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे नाल नहीं जुड़े। जे बाणी पढ़ी होवे ना तो सतगुरां दी बाणी कहिंदी है तेरा काम चस्के नहीं है। असी अमृत बाणी दे वचन पढ़ते हैं कि रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। ਜਾਂ ਇਹ भी वचन पढ़िया जाता है कि रुखी मिस्सी खाए कै ठंडा पानी पीओ। रुखी मिस्सी का अर्थ मैं करांगा हक दी खा तू अपने दी। तेरे हक दी प्रशादे दे नाल तेरे घर च पनीर भी बने प्रवान है। जे तू हराम की कमाई लैके आंदी, बेईमानी की कमाई दे नाल जे तू दाल भी बना ली तेरी वो भी प्रवान नहीं होनी। याद रखी एक गल, ये गुरु घर का सिद्धांत है जिहड़ी मैं अर्ज करना। अज साडे सवाल ने मैं आ खावां कि ना खावां। कमाल की गल, जिस धरती दे उत्ते, जिस हिंदुस्तान की धरती दे विच औरत नूं मां का दर्जा दिता जाता है, अज औरत नूं एक बच्ची नूं कुख नूं कतल कर लग्या पाप नहीं समझिया जाता। पर वह धर्म ये गल कहिंदा जी गंढा खाना लसन खाना पाप है। ये भी तो धर्म के मसले ने ना। अवर्त पिछे लंघ के गए ना बीबिया ने, गंढा नहीं बनाउणा घरां च, तड़का नहीं लाउणा वगैरह वगैरह। कित्थे असीं उलझ गए। सतगुरां दा अमृत बचन मैं तुहाडे नाल साझा कर देवां। सतगुरु कह लगे जे तेरे मन च इन्ने ज़्यादा चस्के ने ना, वो बचन कह लगे रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास। ये मैं पिछले दिन अर्थ किए सन। एक कंन च एक हत्थां दे विच पाउण वाला बीबियां नूं सोहना बड़ा पसंद होंदा, बड़ा प्यारा है, बड़ा पा पा के रखते हैं। सोना तन की जिहड़ी वो सुंदरता का प्रतीक है, मुबारक है, पाओ। गुरमत ने नक छेदक जिहड़े ने छेदक गहने वर्जित ने, दूसरे नहीं वर्जित। गुरमत कहिंदी है पा, छेदक गहने नहीं पाउणे। पर जे इहदे विचों ही तेरा ध्यान इत्थे टिकिया रहा, सुरत तेरी सोने दे विच ही रह गई, सुरत तेरी चांदी दे विच ही रह गई, याद रखी ये भी विकार बन जाएगा। रब नहीं तेरे तक पहुँच सकता, तू रब तक नहीं पहुँच सकता। कला मास नहीं, कला गंढा नहीं खाण दी गल, सतगुरां ने ये भी चीज़ां रोकियां ने। तन ते पाया होया श्रृंगार जिहड़ा वो गलत नहीं, पर श्रृंगार दे विच ही खचित हो जाना, बैठे गुरु घर होना। आम साडे घरां च इदां चलदा, मेरे किसी वीर ने भी कड़ा बनाया होवे ना, वो वाहवा गांह बांह कढ के रखदा, लोग वेख लैण भी 3-4 तोले का कड़ा पाया मैं अज। भलिया तू कड़ा विखाउणा है कि गुरु की गल सुनना है? ये साडे सारियां दा। बीबियां भी जो फिर हार श्रृंगार करके आउंदियां ने, वो कन्नां तो चुन्नी मासा परे रखणियां, झुमके चंगी तरह देख पैण कि मैं पाए ने। साडा अजे सुरत उत्थे टिकी हुई है। रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास। परमल कहिंदे सुगंधियां नूं, बड़े परफ्यूम सुट्टे जाते हैं। असीं तो गुरु नूं नहीं ना बख्शते, गुरु तो भी परफ्यूम सुट्टी जाने। असीं गुरु घर दे विच पता नहीं कित्थे साडी सोच है। रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास। रस घोड़े रस सीजा मंदर रस मिठा रस मास। तुहाडे घोड़े की अज आपां अर्थ कर लीए कीमती गड्डियां, उच्चे महल माड़ियां मंदर। सतगुरु कह लगे खाण वाले पदार्थ मिठा ते मास।
ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਖਚਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਖਚਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, 10 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਦਗੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਨੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੀਰ ਵਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੋਆ ਸੀ, ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ 1000 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 10,000 ਦਾ, ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਬੇਹੱਕੇ ਸਨ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਟਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੱਜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਏਤੈ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਣਾ? ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਾਂਗੇ? ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਰਹਿਸ਼, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੱਥੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਆਖਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਧਨ ਪੁੱਛਣ ਫਿਰ ਨਾਨਕਾ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ? ਸਿੱਧ ਛਪ ਬੈਠਣ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ, ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਇਨ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਾਇਰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
जे तू कुरबान तो इन्ना डरदा, तू बुझ दिल तो हो सकता है, भगत नहीं हो सकता। भगती कदी भी कायरता नहीं अंदर भरदी, पर अज असी भगती के नाम से अंदरों कायर पहला भी सन, अज भी उस वेले संत समाज संत सी, जिहड़े सिपाही सन उन्हां दा हाल की सी कि जिहड़े राजे लोग सन, राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नौंदा पायन घाओ रात पित कुत्ते चट जाओ। जिहड़े सिपाही सन जिन्हां कोल हथियार सन वो लोगों के उत्ते तरस नहीं सी करते, जिन्हां तरस करना सी उन्होंने संसार नूं समझिया कुछ नहीं, उहदे तो वख हो के बैठ के हार के भाई साहब नूं ये गल कहनी पई, थम्मै कोई ना साध बिन साध ना दिखिया जग विच कोआ। जदों गुरु नानक साहब ने वेख्या कि संसार च कोई पूर्ण साधु नहीं दीदा पिया, आखिर फिर बाबे भेख बनाया, उदासी की रीत चलाई। जिस वेले गुरु नानक साहब ने उदासी की रीत चलाई ना, गुरु नानक साहब ने कला शब्दी प्रचार नहीं किया। भाई साहब ने, भाई गुरदास उन्होंने एक हिंट दिता जी, आसा हथ किताब कश, किताब का अर्थ है धार्मिक पोथी। गुरु नानक साहब के कोल धार्मिक पोथी तो मौजूद सी जिहदे उत्ते रब्बी बाणी लिखी जाती सी। आसा का अर्थ सी डंडा। असी गुरु नानक साहब का एक पक्ष अगे रख दिता, डंडे की गल फिर भी ना की। जे गुरु नानक साहब डंडा लैके हथ दे निकलते हैं, लोड़ पैन ते वरतिया भी होवेगा ना गुरु नानक साहब ने, असी गां ही नहीं आउण दिता। बड़े तरह के लोग होंदे ने जिहड़े सीधी भाषा नहीं समझते, उन्होंने डंडे की भाषा समझाउणी पैंदी है। गुरु नानक साहब के हथ दे विच आसा सी, गुरु नानक साहब के कोल डंडा सी, ते मेरा मन ये कहता है कि सतगुरां ने उसदा जरूर वरतों की होवेगी। जे ना समझते हो ना किते विचार रलदी होवे, कई बारी लोड़ पै जाती है। आखिर उस आसा नूं, उस पोथी नूं मेरे सतगुरां ने जिहड़ा है भगती ते शक्ति का सुमेल करके, मीरी ते पीरी का सुमेल करके धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दो श्री साहिबान धारण करते हैं। इत्थे गल एक होर नोट करने वाली है, आउणा मैं अज दे विषय वाली है। गुरु अर्जुन साहब माऊ पिंड जाते हैं माता गंगा जी नूं विआउण। आप सब नूं पता कि किला बनाया हुंदा किक्कर दा कट के गुरु अर्जुन साहब नेजे नाल पुट्टदे ने। गुरु अर्जुन साहब नूं नेजाबाजी सिखाउण वाले बाबा बुढ़ा साहब ने। बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु नानक साहब तो आद सिख ने। इस तो साडे मन च स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बाबा बुढ़ा साहब जी शस्त्र चलाउंदे होणगे तो गुरु घर दे विच शस्त्रां दी रीत उदों दी चलदी आ रही है। ये अज तो नहीं कि केवल तो केवल तुसीं श्री साहब धारण कर लिया। ये किरपाना गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने रैगूलर जड़ियाँ सन सिपाहियां नूं जां अपने जिहड़े योधे सन उन्होंने दे दित्तियां सन कि तुसीं जड़ियां ने शस्त्रधारी होकर विचरना है। जे बाबा बुढ़ा साहब जी, जे गुरु अर्जुन साहब नेजे दे नाल किला पुट्टदे ने ना, इन्हां दी तो उन्हां दी शस्त्र विद्या जिहड़ी है ये बिल्कुल खुलासा हो जाता है कि बिल्कुल निपुण सन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी। जे गुरु निपुण है, उस्ताद निपुण है, धन गुरु रामदास जी ना होणगे, ये चीज़ां सामने आउण ही नहीं दित्तियां गईयां। आखिर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने दो श्री साहब धारण कीतियां। गुरु हर राय साहब महाराज जी के नाल 2200 घोड़सवार रहिंदे ने। ये कोई बाहरी फौज नहीं सन, सिख ही सन जिहड़े सतगुरां दे नाल रहिंदे सन, क्योंकि तन दे उत्ते जिहड़ी श्री साहब तन दे उत्ते जिहड़ी वर्दी है ये उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी तो लागू हो चुकी है। गुरु हरकृष्ण साहब जी बाल अवरेज दे विच सन। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी खुद करतारपुर की जंग लड़ते हैं। गुरु कलगीधर पातशाह जी 14 जंगां लड़ते हैं। याद रखियो सब तो पहली जंग 1686 की है, भंगाणी का युद्ध है। सब तो अखीरला युद्ध 1705 का मुक्तसर का है। खालसा जिहड़ा साजना दिवस है 1699 का है। 86 तो 99 तक तुसीं दा सफ़र देख लो, 13-14 साल बनते हैं। इन्हां समयां दे विच जिहड़ियां खालसा पंथ तो साजना तो पहलां 9 जंगां हो चुकियां ने। 1700 तो लैके 1705 तक 4 जंगां ने, 4 आनंदपुर दियां, एक जिहड़ी है मुक्तसर दी। इस तो पहलां 9 जंगां गुरु कलगीधर पातशाह जी के जीवन च हो चुकियां ने, जिहदे तो यह गल बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सिखां दे कोल शस्त्र उदों भी सन। केवल तो केवल सिद्धांत मेरे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने देना सी। जे लिबास की गल करते हैं ना कि तन दे उत्ते श्री साहब है, तेड़ कशहरा है, सीस दे केसां दे विच कंघा है, पीर बुद्धू शाह नूं कंघा दिता जाता है। गुरु काल दे विच गुरु घर च वरतियां जांदियां सन चीज़ां। हत्थ दे विच कड़े सन, शनि जिस वेले पूजदे ने, सो ये चीज़ां वरतियां जांदियां रहियां रैगूलर गुरु घर दे विच। आखिर वो दिन आया 1699 का, ते सियाणे कहिंदे ने उस दिन बारे विद्वानां सारिਆਂ ने लिखा है कि जिस वेले खालसा पंथ की साजना करनी सी ना, अज की विसाखी तो पहलां 10-15 दिन पहलां
कुछ ने कुछ समा लिखा है, कुछ ने कुछ सालों के कोई वक्ो वक् समा है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी कुछ दिन बिल्कुल खामोश रहे ने। ये खामोशी उदासी वाली नहीं सी, एक खामोशी जिहड़ी तूफान का प्रतीक सी। हुण कणकां वड्ढणीਆਂ ने आपां ते देखो कणकां दे विच एकदम घुट लग जाता है, ना हवा चलती है ना बंदे का साह निकलता है। सियाणे कहंदे ने बड़ा घुट लगा है, जां तूफान आवेगा, नेरी झक्खड़ जां मींह आवेगा। मौसम जे घुट लगा होवे ते तूफान नेरी झक्खड़ आउंदे ने। जिस वेले कोई साधु महात्मा गुरु खामोशी दे विच होवे वो इहो जी नेरी लिया दिंदा कि जिहदे विच जालम साम्राज दा खुरा खोज मिटिया जांदा है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी कुछ दिन खामोश ने। आखिर दूर दुराडे संगतां तक जिहड़े सन हुक्मनामे भेज दिते गए, जिस हुक्मनामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ विसाखी के बारे लिख के ये गल कही गई कि तुसी आनंदपुर साहिब दे विच विशेष करके पहुँचना है। इत्थे एक गल होर याद रखियो, विसाखी गुरु घर दे विच गुरु अमरदास महाराज जी तो मनाई जाती रही है। गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश विसाख का है। जिस वे गुरु नानक साहब उदासियां ते निकलते हैं, पहली उदासी ते सतगुरु तुरते हैं, वह भी विसाखी वाला दिन है। गोइंदवाल की बौली का जिस वेले कड़ टुटदा है, काफ़ी दिन लग गए सन, उस दिन भी विसाखी सी। गुरु अमरदास महाराज जी का एक सिख होया भाई पारो, बड़ा भावना वाला सी। कहन लगा दाता जी सिख दूर दुराडे तुहाडे रहिंदे ने, कदी मिल नहीं आपस में, गुर सिख आपस में नहीं मिलते। मेरा दिल करता है, मेरा दिल कहता कि दो जोड़ मेले जिहड़े ने साल दे विच जरूर रखे जाया करन। याद रखियो मेले नहीं जोड़ मेले, मेले तो जोड़ मेले च फर्क है। दो जोड़ मेले रखे जाण। भाई पारो जी की बेनती मन के गुरु अमरदास महाराज जी ने दिवाली ते विसाखी मुकर्रर की सी, ये गुरु अमरदास महाराज जी तो मनाई जा रही है। पर अज की जिहड़ी विसाखी है, यह खास करके सतगुरुआं ने हुक्मनामे भेज के विशेष तौर पर संगतां नूं जिहड़ा बुलाया। ये जिहड़ा 80,000 तो लैके लख के तकरीबन इकट्ठ होया है। कोई 80 लिखता है, कोई थोड़ा वध, कोई घट लिखता है। सवेर का नितनेम हो चुका है, दीवान की समाप्ति हो चुकी है, सारे पासे खामोशी है, सारे स्टेज के वल देख रहे ने। स्टेज लगी हुई है, इस लगी हुई स्टेज के उत्ते धन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी बिजली के वांग लिशकदी हुई श्री साहब लिया के ते हवा दे विच लहराउंदे ने। जिस वेले श्री साहब हवा दे विच लहराई जा रही है, सारियां संगतां दा ध्यान एकदम केंद्रित हो गया। ये क्यों लग पिया स्टेज के उत्ते? अज तक इदां नहीं सी कदी होया। सतगुरां ने कहा कि गुरु नानक की सिक्खी के बूटे वास्ते, उन्होंने सिंजण वास्ते किसी खून की लोड़ है। मेरी श्री साहब वेखो वख विद्वानां लिखा खून की प्यासी है, गुरु नानक के घर दे विच एक सीस की लोड़ है। सारे पासे खामोशी जाग पई। सतगुरां ने दूजी वार कहा, तीजी वार कहा तो भाई दया राम जी हाजिर होए। ये भाई दया राम उस भाई पारो की अंश के विचों है जिन्हें गुरु अमरदास जी को विसाखी का दिहाड़ा शुरू करवाया सी। भाई दया राम जी हाजिर होकर कह लगे दाता जी गुस्ताखी माफ़ करना, सीस तो उदों का ही तुहाडे चरनां दे विच हाजिर है जदों तो तुहाडी सिक्खी दे विच जां तुहाडे घर दे नाल जुड़िया उठन लग्या मैनूं थोड़ा जिहा समा लग गया। इत्थे बिल्कुल खामोशी छाई हुई सी। आखिर सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने भाई दया राम नूं कोल बुलाया ते अंदर जिहड़ा एक परले पासे तंबू लगा होया, विशेष तौर पर सारे पासे कवर किया होया है, उत्थे गए तो कुछ विद्वानां ने लिखिया भी सतगुरां ने पुछया कि दया राम मैं तुहाडे हत्थां दे विच शस्त्र फड़ाउणे ने। ये मैं थोड़ी जी पहला बेनती कर चुका, 9 जंगा हो चुकियां ने। चलो विद्वानां दा वलवला आपो अपना। उस वेले इत्थों दे लोकां दा ये हाल सी। अगों जवाब सी, कह लगे काम हमारा तोलू तकड़ी, नंगी करद कदे नहीं पकड़ी, चिड़िया उड़िया तो डर जाऊँ, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊँ। आ हाल सन उस वेले जिहड़े साडी बहुतांत कौम दे जिहड़े सिख गुरु घर च शस्त्रधारी सन, वो शस्त्रधारी सन। बाकी जिहड़ी कौम सी, बाकी जिहड़े सिख सन, वो पूर्ण तौर पर शस्त्रधारी नहीं सन। आखिर तंबू दे विच सतगुरु खड़दे ने, श्री साहब चलण की आवाज़ आउंदी है, धरती ते कुछ डिग्गण की आवाज़ आउंदी है, बाहर सतगुरु आउंदे ने, श्री साहब जिहड़ी वो खून दे नाल भिजी है। इत्थे विद्वान आपो अपने मत्थे मारते हैं। कोई किसी ने लिख दिता ये जी बकरे आ गए, किसी ने कुछ लिख दिता। मैं पिछली बार भी कहा सी, जो गुरु की गल चले एक भावना बना के रखियो कि सतगुर मेरा मार्ज वाले प्रभ भावै बिन शास्त्र रखे, गुरु समर्थ है। एक विद्वान ने बड़ी सोहनी गल लिखी सी, कहन लगे जिहड़ी गल गुरु ने पर्दे विच रखी है, तुसीं काहतों पर्दे खोल के वेखदे जे अंदर सिर वलाए के अंदर बकरे झटकाए सन।
गुरु ने कला वरताई, गुरु के कोल ताकत है, वो सर्व कला समर्थ, कुछ भी कर सकता है। सतगुरु बाहर आए, एक एक करके सतगुरां ने जड़ियां ने 4 सीसां दी होर मंगां कीतियां, 4 गुरु के लाडले आए। आखिर उधर भी इहो कला वापरदी है। इन्ने चिर नूं सतगुरां ने स्टेज के उत्ते एक सरबलोह का बाटा मंगवाया। बाटा याद रखियो विशालता का प्रतीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरां ने 2 धारा खंडा रखिया। खंडा मीरी ते पीरी का भगती ते शक्ति का प्रतीक है, शस्त्र ते शास्त्र का प्रतीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे सतगुरां ने सतलुज का निर्मल नीर पाया। याद रखियो पदार्थ तरल दुध भी वरत्या जा सकता सी, पर जिस वे निर्मलताई की गल आउंदी है, पानी नूं पवित्र मन्निया गया है। गुरु अर्जन साहब ने जो ब्रह्म ज्ञानी के जीवन की गल की ना, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला उदाहरण दी, जैसे मैल ना लग गया जला। याद रखियो पानी कभी मैला नहीं हुंदा। हुण मेरे को समा नहीं, मैं कली कली गल स्पष्ट करा। सतगुरां ने माता जीतो जी जिहड़े ने वो पतासे लैके आउंदे ने, क्योंकि माता साहिब देवा जी बाद च आउंदे ने खालसा साजना तो। पतासे आए जाते हैं। पतासे जिहड़े ने वो छोटे ते वड्डे हुंदे ने। इहदा भाव सी जिहड़े उच्चियां नीवियां जातियां सन, इन्हां नूं एक थां ते पा के सतगुरां जिस वेले पतासियां नूं घोलिया, पतासियां दा रूप खत्म हो गया, केवल ते केवल मिठास रह गई। सतगुरु ये गल स्पष्ट करना चाहते सन कि साडे घर दे विच ऊच नीच नां दी कोई चीज़ नहीं, साडे घर दे विच भेद भाद नां दी कोई चीज़ नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सारे बराबर ने। उत्थे फिर 5 बाणियां दा जाप किया गया, जिहदा जाप रोजाना सिख करदा है। जपजी साहब, जाप साहब, सुधा सोईए, चौपई ते आनंद साहब। अमृत का बाटा तैयार होया। इन्हां 5 गुरु के लालां नूं जिहड़ा अमृत जिहड़ा सी छकाया गया। 5 चुले नेत्रां दे विच, 5 चुले जिहड़े ने मुख दे विच, 5 चुले केसां दे विच पा के हरेक वार कहा गया कि बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस वेले 5 ਸਿੰਘਾਂ नूं जिहड़ा सी अमृत तैयार करके अमृत छका दिता गया, बाद बाटे दे नाल छकाया। छकाउण तो बाद मेरे सतगुरां ने आप इन्हां दे अगे जिहड़ा सी वीर आसन होके कहा, खालसा जी अज तो तुहाडा जिहड़ा गुरु है, धर्म का पिता है, वो गुरु गोबिंद सिंह है। एक गल याद रखियो, तुसी दया राम तो, धर्म चंद तो, मोहकम चंद, इन्हां तो जिहड़े सिंह बन चुके जे। हुण मैं तुहानूं बेनती करदा हाँ कि मैनू गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दिओ। आखिर 5 प्यारे साहबाना ने गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी नूं अमृत की दात दी। गुरु कलगीधर पातशाह जी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह सजदे ने। तो ये अज तक का मैं मन च अज सोच रहा सा, कई बार इदा होंदा जो इकट्ठ होवे ना ज़्यादा, तो मनुख किसी न किसी प्रभाव हेठ कई गल्लां अनाउंस कर दिंदा जांदा। जिहड़े वड्डे लोग हुंदे ना अनाउंस करते हैं, जां जिन्हां दे कोल पावर है, कह दिता जांदा जी असीं सारे बराबर हाँ, असीं सारे इक्को जे हाँ। जे गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कहा कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हाँ करो निवास। जे सतगुरां ने यह गल कही कि मैं जिहड़ा खालसे नूं सारे हक दिते ने, तो याद रखियो सतगुरां ने करके भी विखाया। भावें बाबा बंदा सिंह नूं बहादुर नूं तोड़न वेले खंडा दिता होवे, भावें समाध दे उत्ते तीर दी नोक दे नाल सलामी दिती होवे, भावें चमकौर दी गढ़ी होवे, जिथे खालसे नूं हक दिते, जिथे खालसे ने हुक्म गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कर दिता, सतगुरां ने सत करके प्रवान कर लिया। इहो गल सी। दूसरा भाई गुरदास कूक के उठ पिया, कहन लगा पीओ पाहुल खंड धार, होए जन्म सोहेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। मेरे सतगुरां ने गुरु चेले का सिद्धांत जिहड़ा सी सामने रख दिता। अमृत का बाटा तैयार करके सतगुरां ने फिर रहतां ते कुरैतां, 5 रहतां ने, 4 बज्जर कुरैतां ने सतगुरां ने जिहड़ियां सन वो सिख कौम की झोली दे विच पाईयां। ते इह बल एक सतगुरां दा बचन अक्सर पढ़िया जाता है कि जब लग खालसा रहे नियारा। नियारे का अर्थ निरोल वखरा सारियां तो। जब लग ला खालसा रहे नियारा। वो किहड़ा नियारा जी? जागत जोत जपै निसबासुर। इन्हें जागदी जोत नूं जपना है, दूसरियां जोतां नूं नहीं जपना जिहदे विच घिओ पाउण दी तुहानूं लोड़ पै जाए तो घड़ी के बाद फिर बुझ जाए। मैनूं माफ़ करिया जी, मैं पहला ही कहा, इनू जाके मैं अर्ज करांगा। जागत जोत जपै, 33 सोईयां का पहला सोई है, जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैक ना आनै। वेखी एक अकाल पुरख तो बिना किसी होर दे थां ते मत्था ना रगड़दे ने। साडे महापुरख ने, साडे महात्मा जी ने, साडे साधु ने, ये भी बाणी गल की गल करते हैं। भलिया जे ये बाणी की गल करते हैं तो फिर गुरु की दी गल करदा सी? सतगुरु कहते एक तो बिना किसी अगे नहीं सिख ने झुकना। याद रखियो साधु आउंदा, संत आउंदा, महात्मा दा सत्कार है, पर सिख दा सिर केवल ते केवल गुरु के चरणों के विच झुकदा है। घर च माँ है, बाप है, भैन है, भरा है, सारिਆਂ दा सत्कार है। जो लाड़ तुहाडा प्यो दे नाल है,
दुनिया का कोई रिश्ता नहीं बन सकता कभी भी, याद रखियो। जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मत मन नैक न आने पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे। पूरी प्रेम दे नाल भावना दे नाल गुरु के चरणों 'च बैठिया करी। ब्रत गोर मड़ी मठ भूल ना माने। असीं ते बरछियां मनाउने आ बाबियां दियां, समाधां साडे भी सुख नाल बथेरियां ने। जो गुरु कह रहे ने वो तो असीं कई कोहां दूर हैं। साडी मजबूरी हो जाती है जी प्रचारकों की। प्रचारकों को सद्दिया, जिन्होंने बरछी के उत्ते गया है रुपया जिहड़ा असीं 5111 लिफाफे च पा के दे देना, प्रचारक की बोलेगा? बरछी मनाउणी कोई नहीं, की आखेगा? समाधा ते जाना कोई नहीं। जो तुसीं सरूप रख के कथा ही उत्थे कराती, असीं की बोलांगे? पर गुरु साहब की कह रहे हैं? कह लगे जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक न आनै पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै। ब्रत गोड़ मड़ी मठ भूल ना माने तीरथ दान दया तप संजम एक बिना ने एक पछाने। कहते तू तीर्थां ते तू दान पुण्य कर, जो मर्जी कर, याद रखी एक केवल ते केवल परमात्मा नूं पछाणना। ये गल गुरु अमरदास महाराज जी ने भी कही सी। कहन लगे लभ लोभ अहंकार चूका। अहंकार की गल रह गई सी, मैं कह के समाप्ति वाल आवां। याद रखियो सिख दे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, खालसे दे अंदर। जो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने यह विकार छड्डण की गल की ना, तो एक गल कही, कह लगे साधो मन का मान त्यागो। हुण साधो तो वह है जिन्हें अपने आप को साधिया होया है। सतगुरु जीओ तुसीं धर्मियां नूं कह रहे जे मन का मान त्यागो, कहना तो संसारियां नूं कहो। मैं तो धर्मी चंगा भला बाणी पढ़दा, बाणे का धारनी, तुसीं मैनूं क्यों कह रहे जे? साडे मन च सवाल पैदा होवेगा अक्सर। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब का श्लोक जवाब दिंदा जी इहदा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कह लगे पुत्तर कि एक धर्मी ते एक अधर्मी, संसारिक ते निरंकारिक मनुख दे अंदर बहुत वड्डा जिहड़ा भेद भाव हुंदा है। एक वो मनुख है जिहड़ा सधारण है, उन्होंने माया का हंकार है। एक दिन माया कुदरती भाना वापरेगा, सारी हथों चली जाएगी, वह हंकार तोड़ना बड़ा सौखा है। एक मनुख नूं विद्वता का हंकार है, दिमाग फिर जाएगा, वह हंकार तोड़ना बड़ा सौखा है। किसी को पदवी का हंकार है, वही पदवी खुस जाएगी, वह हंकार तोड़ना बहुत सौखा है। सब तो औखा हंकार तोड़ना ही धर्मी मनुख का है। सतगुरु वो किवें? ते गुरु तेग बहादुर साहब का एक श्लोक है, कह लगे तीरथ बरत अर दान कर। हुण एक मनुख हंकार करदा है, मैं परिवार च रहना, समय ने पलटी मारी, परिवार ने साथ छड्ड दिता, हंकार टुट गया। पर एक मनुख घर छड्ड के तीर्थां ते जाके निवास कर गया, उहदा हंकार कौन तोड़ेगा? मसला तो हंकार दूर करन दा सी ना, असीं ते शरीर नूं दूर करता परिवार दे नालों। छड्डना हंकार सी, छड्ड असीं कई कुछ दिता। छड्डने विकार सन, तो मैं आरंभ च कह दिता छड्ड के असीं आंडे जिहड़े गंढे गुंडे बैठ के। सतगुरु कह लगे तीरथ बरत अर दान कर। मैं अर्ज कर रहा सा, परिवार का हंकार टुट गया, तीर्थां ते चल गया, वो हंकार प्रबल हो गया। कहता मैं सारा कुछ छड्ड के देखो साधु बनया फिरदा, अंदर तो फिर हंकार का कंडा वजदा पिया है। दान, एक मनुख पैसे का हंकार करदा, मैं इन्नी कमाई करदा। लॉकडाउन च सारे का हंकार तोड़ दिता लॉकडाउन ने, बड़े बड़े कमाई वाले के काम ठप हो गए। पर दानिया का हंकार फिर प्रबल सी, किसी को 2 केले देंदे सन, 10 फोटोआं खिंचते सन, मैं दान पिया करदा। हंकार तो फिर खलोता होया पिया है। इनू तू दूर करना सी। तीरथ बरत, बरत का अर्थ है वर्त, धार्मिक अर्थ कर दिए। एक मनुख हंकार करे मेरे घर च कीमती पकवान बनते हैं, मैं आ चीज़ां खाना है, बीमारी पैदा हुई, डॉक्टर ने सारा मना कर दिता, हंकार टुट गया। एक भुखा रह के हंकार करी फिरदा, तेरा धर्म कित्थे गया भलिया? छड्डना ते हंकार सी। तीरथ बरत अर दान कर, मन मैं धरै गुमान। गुमान कहते हैं हंकार नूं। नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर, इशनान तेरा हाल तो यह है जिवें एक हाथी नूं इशनान कर दे, वह नहा धो के उत्ते चिक्कड़ पा लैंदा, तू करके धार्मिक कर्म ते उत्ते हंकारां दा चिक्कड़ पा लैना है। सतगुरु कहलगे तीरथ बरत अर दान कर, मन मैं धरै गुमान, नानक नेफल जात दे ज्यों कुंचर इशनान। इधर मैं अर्ज कर रहा सा 33 सवैयां दे विचों तीरथ तप दया तत संजम एक बिना न एक पछाने। कह लगे पूरन जोत जगै घट मैं। अवेखी बाहरी जोतां वाल ना भजी। अज साडी कौम बाहरी जोतां वाल नूं पाठ रखिया होया ना, बाबा जी जोत ना बुझन दिओ। एक पक्का बंदा भाया हुंदा कि अंदर दी जिहड़ी है जोत घिओ वाली ना बुझे। मैनूं माफ़ कर दिओ, कदी टब्बर बह के गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल भी सुन लो कि ये अंदर दी जोत भी किते जग पवे। बाहर दी जोत तुसीं घिओ पा के जगाती, अंदर दी जोत जिहड़ी बाणी ने जगाउणी सी, बाणी बाबा पढ़े, साडा थोड़ी कोई काम है। बाबा तो बाबे का काम बन गया ना, ग्रंथियों का काम, पाठियों का काम है बाणी पढ़नी, साडा कोई लिंक नहीं। सतगुरु कहते जागत जोत
ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਿਬਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, मैं कह दिता एक छेवें पातशाह ने ये चीज़ां सानू दित्तियां सन। लिबास साडे कोल पहला सी, अज सिद्धांत सतगुरां ने दे के सानू ये खालसे की वर्दी पा के ये गल कही सी, जिथों मैं समाप्ति करा कि जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दिऊं मैं सारा। तू न्यारा वखरा बनाया, तेनू तू वखरा बन के रह। एक गल याद रखी, जब ये गहे विप्रन की रीत, इत्थे सतगुरु शब्द होर भी वरत सकते हैं, औरन की रीत भी कह सकते। विप्र दी क्यों कहा? विप्र दा तां ब्राह्मण, ब्राह्मण जदों भी वार करता अंदर का करता। साडियां अज बहुतियां रीतां जिहड़ियां ने वो ब्राह्मणी वादत च ने। मैनूं माफ़ करना, मेरे को हुण ये समा नहीं हैगा, खुलासा करन दा समा हो चुका। मैं 5 मिनट वध ला लेने अगे। कहण लगे कि जे तू जप ये गहे विप्रन की रीत, जे तू दूजियां रीतां वल चला गया ना, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत, फिर मेरे वाल मूँह करके ना तू आवी। इस करके तू जे तू खालसा बनना है तो पूर्ण जोत जगह घट मैं, तेरे अंदर उस परमात्मा की पूर्ण जोत जगनी चाहिए है, तां तू अमरधारी है। नहीं तो तन के उत्ते लिबास है। तो मैनूं माफ़ करना, लिबास का गुरु घर दे विच कोई थां नहीं। सो अज दे दिन आ सिद्धांत सी गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी का जिहड़ी साडी झोली दे विच पाया। दाता जी मेहर करन। मैं बेनती करा समाप्ति दे नाल कि गुरमुखो लिबास धारी तो चल के असी अमृतधारी हो जाइए। जो मनुख अमृतधारी हो जाता है, फिर बाणी कहती अमृत पीवो सदा चिर जीवो। फिर मनुख नूं आत्मक मौत नहीं आउंदी। इहदी जिहड़ी है सुरत परमात्मा के चरणों विच अभेद हमेशा लई हो जाती। इन्नियां बेनतियां प्रवान होईयां भुलां गलतियां दी खिमा